अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन राजा और आप लोग देख रहे हैं व्यू स्टडी विद हसन। आज हम बात करने जा रहे हैं ENG 201 की शॉर्ट लेक्चर नंबर 2 की। तो होप सो लास्ट लेक्चर वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटलाइन इज यू आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन की टाइप्स में आपके पास फॉर्मल आता है, इनफॉर्मल आता है, देन यू हैव इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग एंड परसुएसिव स्पीकिंग। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। देन वी हैव मोड्स ऑफ डिलीवरी। मोड्स ऑफ डिलीवरी आपके पास 4 तरह के हैं, इनको भी हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। एक्सटेम्पोर, इम्प्रॉम्प्टू, मेमोराइजेशन एंड reading. Then you have preparation material and using visual aids. So first of all, let's talk about what is communication. So as in the last video we discussed what is communication. That communication is a way of expressing your feelings through whether you write whether you can use written communication or oral communication. So first of all, you have to differentiate between written documents and oral presentations. So first of all, written presentation is basically a presentation in which you write. So first of all, the major difference between written documents and oral presentation is basically that in written communication you have a lot of time, you have unlimited time to write, and in oral communication on the other way you have less time to convey that to the client who's sitting in front of you. Then you have no interaction in written communication. You have no interaction with the client who are you are talking to. All your interaction is with the all his interaction is with the paper on which you have written the certain text. And then on the other hand, you have user client interaction in oral communication. Then you have arguments in written communication you focus on text, but in oral communication you focus on the way you are presenting. You can use visual aids like projectors for giving presentations. Then you have to write a bit detail in written communication, जबकि आपको ओरल कम्युनिकेशन में इतनी ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. दैन लास्टली यू हैव प्रिसाइज सिंटेक्स एंड फोकस ऑन टेक्स्ट इन रिटन कम्युनिकेशन, दैट यू हैव टू focus on the procedure, that how are you writing, and instead on oral communication you don't have to focus on a certain syntax. You can just use your conversational syntax that is very easy to convey. These were the pros and cons of oral communication and written communication. I hope so आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ चुके होंगे. Then let's go towards फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ फॉर्मल. तो फॉर्मल क्या होता है कि हम कहते हैं फॉर्मेलिटीज़, या मतलब बेसिकली आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं तो यू आर बीइंग फॉर्मल. आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं इन अ फॉर्मल वे. आप अपने बेसिकली बॉस से बात कर रहे हैं, अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, दैट इज़ व्हेन यू टॉक इन अ फॉर्मल वे. स्ट्रेंजर से जब आप बात कर रहे हैं. एंड इनफॉर्मल इज़ बेसिकली व्हेन यू टॉक टू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, तो वो एक इनफॉर्मल वे होता है ऑफ टॉकिंग. तो दैट आर द टू वेज ऑफ कम्युनिकेशन. देन फॉर्मल इनफॉर्मल के बाद आपके पास आता है informative speaking and persuasive speaking. So first of all, informative speaking is when you are conveying a sort of information or guidance. So your main primary role is to just attract your audience and convey the message you want to or demonstrate. Then persuasive speaking basically means influencing a group of people or your audience. So that is persuasive speaking. You don't have to इतना ज़्यादा आपको इसमें कोई प्रॉब्लम इसमें मीन्स फोकस करने की जरूरत नहीं है. You just have to understand the basic concept that I am telling you. Then you have delivery methods. तो delivery methods कौन कौन से हैं? Extempore. तो first of all let's start discussing them. Extempore basically means कि आपके पास आपकी फुल तरह से तैयारी हो, आपने इसको रिहर्स भी किया, आपने इसको प्रिपेयर भी किया, आउटलाइन भी किया है. You have given it a lot of time, so that is extempore, the most modest way of presenting. Then you have impromptu. Impromptu basically means that you have prepared, you have memorized, but you have a poor skill of organization, that is impromptu. Then you have मेमोराइजेशन. मेमोराइजेशन बेसिकली मीन्स कि आपने रट लिया उस चीज़ को, आपने याद कर लिया है. अब ये बहुत रिस्की है. रीज़न ये है कि देर इज़ 50% चांस हो सकता है कि आपका याद करने आपकी मेमोराइजेशन अच्छी हो, बट देर आर 50% चांस दैट यू आर गोइंग टू बी पैनिक एट दैट सिचुएशन. तो मेमोराइजेशन इज एट रिस्क. देन लास्टली यू हैव रीडिंग. रीडिंग बेसिकली मीन्स कि आपने उसको सामने रख लिया एंड यू आर गोना जस्ट रीड दैट. तो आपका फोकस टेक्स्ट पर होने वाला है, आप लोगों से अच्छी तरह से इफेक्टिव में वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे. तो दैट इज़ रीडिंग. देन यू हैव प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन. यू कैन प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन. फर्स्ट यू हैव यू नो द नॉलेज ऑफ योर ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाली है या उनको बेसिक नॉलेज है. देन यू हैव नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट. देन यूज ऑफ टाइम एंड रिहर्सल. दैट आर द 4 मेन की एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेजेंटिंग. देन यू हैव लेट्स गो डाउन अ बिट. आपके पास आ जाता है लास्टली यहाँ पर ये सब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है. रीज़न ये है कि आपने जितना पर कुछ डिस्कस किया दैट इज़ जस्ट इंपॉर्टेंट. तो आपने ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने ये जो कंसेप्ट इनको क्लियर करना है, इंशाल्लाह ताला आपके अच्छे मार्क्स आएंगे. तो आई एम फोकसिंग ऑन विजुअल एड्स. विजुअल एड्स एज आई टोल्ड यू बिफोर, प्रोजेक्टर या प्रेजेंटेशन के लिए आप स्लाइड यूज़ कर सकते हैं. तो उसकी आपको टिप्स दे रहा है कि 35 mm की स्लाइड यूज़ करें. दैन वीडियो एंड फिल्म यूज़ करें, साउंड ना यूज़ करें ताकि स्पीकर का प्रॉब्लम ही ना हो आपको.
देन आपके पास इसमें दो चीज़ें आपने और करनी है, एक तो आप लिमिट कर दें 10 जो आपके वर्ड्स हों पर स्लाइड, और दूसरा आपके पास 18 पॉइंट का टाइम न्यू रोमन फॉन्ट साइज़ जो है वो यूज़ हुआ हो, दैट वुड बी बेटर। दैट्स इट, यहाँ पर आपने यही डिस्कस करना था। होप सो ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज़।